Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept that is probability. And students, about basic terms that is random experiment, sample space and event. About all these basic terms I have discussed in my previous lecture, and in my description box I have given link of that lecture. So with help of that link you can understand about all those basic terms. Because before studying about probability, first of all we should know about what is random experiment, what is sample space and what is the meaning of event, right? But our today's topic is probability. So first of all, what is the meaning of probability? So students, probability is that branch of mathematics which deals with the measures of degree of uncertainty or certainty of certain events, right? For example, मैं आपको बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ. इफ़ वी थ्रो ए डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो वी ऑल नो इट मे कम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट? So with help of probability we can find possibilities of getting number 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो क्या क्या possibilities रहेंगी कि नंबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ जाए. So ये सभी possibilities हम find out कर सकते हैं with help of probability. And second example यहाँ पर हम ले सकते हैं coin का. If we throw a coin, so we all know कि या तो head आएगा या फिर tail आएगा. So possibilities of coming head or tail we can find with help of probability. So there are so many examples all around us कि हम बहुत सारे examples हमारे सामने हैं जो आप देख सकते हैं जिन cases में हम possibilities find out कर सकते हैं with help of probability. For example, if we have a bag having 3 red and 4 white balls and we want to draw one ball, right? So that ball may be red, maybe white. So probability of getting, that is possibilities of getting one red or one white ball, we can find with help of probability, right students? So, but to find probability of an event E, there is a formula. So let's see कि वो formula क्या है. So you can see probability of an event E is equal to number of outcomes favorable to E upon total possible outcomes. अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कितने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसके फेवर में हैं और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स से, राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और देखेंगे कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट? तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस. ओके, so let's come to questions. So let's see what is our first question. So first question is, yes students, 2 dice are thrown simultaneously, okay, then find probability of getting 6 as product. हमने 2 dice को एक साथ इकट्ठे फेंक दिया. 2 dice को एक साथ फेंक देना या एक die को 2 times फेंकना, both are same things, right? तो we have to find probability of getting 6 as the product. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 36, राइट? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगी 36, राइट? ओके, बट हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग 6 एज द प्रोडक्ट, जो दोनों नंबर्स आएंगे उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट E इज एन इवेंट of getting 6 as product, right? तो अभी हम फेवरेबल केसेस देखते हैं. यहाँ पर टोटल हमारे पास 36 रहेंगे, ये हमें पता है, लेकिन फेवरेबल केसेस कौन कौन से रहेंगे कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे 6 रहे. यस, या तो फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकेंड डाई पर 6 आ जाए तो 1 × 6 6 हो जाएगा, या फिर फर्स्ट पर 2, सेकेंड पर 3, 2 × 3 6, या फर्स्ट डाई पर 3 रहे, सेकेंड डाई पर 2 रहे, ओके. और क्या हो सकता है? ये 6 1, राइट? तो देर आर 4 फेवरेबल केसेस, ओके. 1 × 6, 2 × 3 भी 6, 3 × 2 भी 6, 6 × 1 भी 6, राइट स्टूडेंट? तो फेवरेबल केसेस आपके पास 4 हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 36 है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट इज 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 36. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E आपके पास आ जाएगी 1/9 ऑफ गेटिंग 6 एज प्रोडक्ट, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन. तो लेट्स सी व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन है, इन ए थ्रो ऑफ 2 coins find probability of getting both heads or both tails. ओके, सो इन ए थ्रो ऑफ 2 coins, तो यहाँ पर भी वही बात है कि एक कॉइन को 2 times थ्रो करना, राइट? या 2 coins को एक साथ थ्रो कर देना, राइट?
सो बोथ आर सेम थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है कि आपको जो 2 कॉइन्स थ्रो करने हैं, आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या तो बोथ हेड्स होने चाहिए या फिर बोथ टेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 बनती हैं, डेट इज़ हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 4 हैं, लेकिन हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, या फिर दोनों हेड होने चाहिए या फिर दोनों टेल। तो देर आर ओनली 2 फेवरेबल केसेस, डेट इज 2। तो वी विल एज्यूम लेट E इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू येस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2, total 4. So probability of getting both heads or both tails will be 1/2, right? So it is very simple. Now let's move to third question. In a single throw of 2 dice, okay, अभी हमने बात की थी, in a single throw of 2 dice total possibilities 36 होती हैं। Now find probability of getting a doublet. Find probability of getting a doublet. आपके पास doublet आना चाहिए। Now what is the meaning of doublet? First of all, डबलेट का मतलब होता है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, डेट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस कितने आएंगे इवेंट ई में? हम इवेंट ई यहाँ पर मान लेते हैं ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो फेवरेबल आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर होना। तो देर आर 6 फेवरेबल केसेस, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 6 फेवरेबल हैं, टोटल 36 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। इट इज़ सो सिंपल ना। हम सिर्फ 2 काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, हम फेवरेबल केसेस ले रहे हैं, हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स ले रहे हैं और फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट? नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नीदर 9 नॉर 11। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, तीनों क्वेश्चंस में हमें कुछ गिवन था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि ना तो सम 9 होना चाहिए ना ही सम 11 होना चाहिए, ना तो सम 9 होना चाहिए ना ही सम 11 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले सम 9 या सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सम 9 या फिर सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो जो भी आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नीदर 9 नॉर 11, बिकॉज वी नो कि किसी भी इवेंट के होने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, ना तो सम 9 आना चाहिए ना ही सम 11 आना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले सम 9 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नीदर 9 और 11, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एज्यूम लेट E इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9 or 11, of getting some 9 or 11, right? तो let's see what will be the favorable cases. टोटल तो हमें पता है 36 ही होंगे। तो सबसे पहले 9 सम कब कब आ सकता है? 9 सम व्हाट आर पॉसिबिलिटीज? यस, 1 के साथ कोई नहीं बनेगी, 2 के साथ भी नहीं, 3 6 4 5 5 4 6 3, राइट? तो ये तो आपके पास 9 की बन गई। नेक्स्ट हमने सम 9 के आपके पास यही 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। 11 के आपके पास 2 ही बनेंगी, या तो 5 6 और 6 5। तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके पास केसेस हैं, इन सभी केसेस में 2 नंबर्स का सम या तो 9 है या फिर 11 है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके पास 6 फेवरेबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 6/36 टोटल, दैट इज 1/6। बट हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नीदर 9 नॉर 11, दैट इज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, and it will be 5/6. Right students, so it is very simple. Now let's move to next question. Okay, so next question is, yes, one card is drawn from a pack of 52 cards. 52 cards होते हैं total, and हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है। Now find the probability that the card is red. जो कार्ड है वो रेड कलर का होना चाहिए, एंड सेकंड पार्ट है कार्ड ब्लैक कलर का होना चाहिए, और थर्ड है जो कार्ड है वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए,
राइट। तो लेट्स कम टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो रेड कलर का होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स वी नो आउट ऑफ 52 देयर आर 26 रेड एंड 26 ब्लैक. तो वी विल assume let capital A is an event of getting a red card. That capital A is an event of getting a red card. So what will be the probability of A? Yes, probability of A is equal to favorable 26 जो कि टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 और टोटल कार्ड्स 52. So it will be 1/2. So 1/2 it is probability of getting a red card. Second card is black. So we will assume let B is an event of getting a black card. So probability of B is equal to, yes, same here, favorable case is 26. We can assume probability of B here B for black भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Simply we can use B. So favorable 26, total 52. तो यहाँ पर भी probability same रहेगी, that is 1/2, right? थर्ड केस है जो कार्ड है वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो किंग के भी होते हैं और रेड भी होते हैं? किंग के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, राइट. एंड आउट ऑफ 4 देयर आर 2 कार्ड्स रेड, ओके. 2 उसमें से रेड होते हैं. तो इट मीन्स 2 ऐसे कार्ड होते हैं जो रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं. तो फेवरेबल यहाँ पर 2 रहेंगे, टोटल यहाँ पर आपके पास रहेंगे 52. सो वी विल assume लेट सी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड, गेटिंग ए रेड एंड किंग कार्ड, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू फेवरेबल हमारे पास 2 हो गई, टोटल 52. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/26, राइट. तो इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25. आपके पास टोटल 25 नंबर्स हैं. इसके बाद टोटल जो आउटकम्स हैं वो 25 हैं. नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए प्राइम नंबर. हमने एक नंबर सेलेक्ट करना है, एक नंबर को सिलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए. ओके, वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं कि 1 से लेके जो 25 आपके पास जो टोटल नंबर्स हैं उसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं. वो जो भी नंबर्स प्राइम नंबर्स हमारे पास जितने भी आएंगे वो सभी ही हमारे होंगे फेवरेबल केसेस. तो लेट्स सी कि 1 to 25 में से विच नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल assume, कुछ नेम दे देते हैं. let E is an event of selecting a prime number, ओके. तो लेट्स सी प्राइम नंबर्स के कौन कौन से केसेस रहेंगे. यस, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. ओके, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. तो लेट्स सी कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो देयर आर टोटल 9 फेवरेबल केसेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपके पास आ जाएगी 9 और टोटल नंबर आपके पास अवेलेबल है 25. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए प्राइम नंबर विल बी 9/25, राइट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains 3 red and 4 black balls. एक बैग में आपके पास हैं 3 red and 4 black balls. ओके, एंड हमें जो ड्रॉ करनी है वो 2 balls ड्रॉ करनी है यहाँ पर. ठीक है, 2 balls are drawn at random. Now find probability of getting both red, both black and 1 red and 1 black. या तो वो दोनों balls रेड कलर की होनी चाहिए, फर्स्ट केस में दोनों रेड होनी चाहिए. सेकेंड केस में पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बोथ ब्लैक बॉल्स एंड इन थर्ड केस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 balls एंड आउट ऑफ 2 देयर शुड बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक. लेट्स सी कैसे होगा. ओके, तो फर्स्ट केस दोनों रेड होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम लेट आर भी मान सकते हैं और आर फॉर रेड. ओके, सो लेट आर इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बोथ रेड बॉल्स. ओके, तो लेट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बोथ रेड बॉल्स क्या होंगी. दोनों रेड होनी चाहिए. टोटल 3 रेड हैं पर 3 में से आपको 2 रेड लेनी है. तो 3C2 और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी. टोटल 7 बॉल्स हैं, 7 में से आप 2 ड्रॉ कर रहे हो, राइट स्टूडेंट्स. तो फेवरेबल 3C2, टोटल 7C2. सॉल्व कर लेते हैं इसको. कॉम्बिनेशन वेरी सिंपल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा. 7 फैक्टोरियल, 2 factorial से 2 factorial cancel and we can write it as 7 into 6 into 5 factorial, 3 factorial 6 and it will be 7 into 6 into 5 factorial and finally आपके पास जो probability आ जाएगी that will be 1/7 of drawing both red balls, right. Next come to
वी हैव टू ड्रॉ बोथ ब्लैक बॉल्स, सेम हेयर, सेम यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे होगा, दोनों ब्लैक होनी चाहिए. तो वी विल एज्यूम लेट कैपिटल बी इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बोथ ब्लैक बॉल्स. तो लेट्स सी टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 4, बट हमें ड्रॉ करनी है 2. तो फेवरेबल केसेस 4C2, टोटल 7 में से 2 ड्रॉ करनी है. इज इट क्लियर? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. ठीक है, इट विल बी 7 फैक्टोरियल और ऊपर चला जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, एंड वी कैन राइट इट एज 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2, एंड सेम हेयर 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल एंड इट इज़ 12, 12 2 जा 24, तो 2/7. 2/7 आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ ब्लैक बॉल्स. राइट, नाउ कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको ड्रॉ करनी है जो बॉल्स, उसमें से एक बॉल रेड होनी चाहिए एंड 1 शुड बी ब्लैक. ठीक है, तो वी विल एज्यूम, कोई भी हम नेमिंग यहाँ पर दे सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स यूज़ करते हैं. तो वी विल एज्यूम लेट कैपिटल C और सिंपली वी कैन एज्यूम कैपिटल E. सो कैपिटल E इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास आ जाएगा. अब आपको एक रेड लेनी है, तो आउट ऑफ 3 में से आप एक रेड ले लेंगे, आउट ऑफ 4 में से आप एक ब्लैक ले लेंगे और टोटल आपके पास 7 में से 2 हो गई. नाउ वेरी सिंपल, बस सॉल्व कर लेते हैं. 3C1 वी नो इट विल बी 3, 4C1 इट विल बी 4 बिकॉज इन जनरल वी नो NC1N होता है. 7C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 7 फैक्टोरियल. ठीक है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं. वेरी सिंपल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 into 6. ठीक है, इट विल बी 42, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 21 and it will be 4/7. Right students, so it is so simple. Now let's move further. Okay, so let's move to next question. So our next question is, yes, a bag contains 5 white, 7 red and 3 black balls. In a bag there are 5 white, 7 red and 3 black balls. Okay, and 3 balls are drawn one by one without replacement. यहाँ पे सबसे important point आपको दिया हुआ है कि आपको 3 balls draw करनी है but without replacement. Without replacement, find probability that none is red. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर एक साथ बॉल्स को ड्रॉ करना, बोथ थिंग्स आर सेम. राइट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट भी पिक कर सकते हैं. तो लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे होगा. आपके पास 5 वाइट, 7 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं. 3 बॉल्स आपको ड्रॉ करनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट E इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में से एक भी रेड नहीं होनी चाहिए. तो इसके मतलब जो हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है या तो वो वाइट होनी चाहिए या फिर वो ब्लैक. तो जो हमारे पास टोटल फेवरेबल हैं वो 5 + 3 टोटल 8 हैं. हमें 8 में से ही बॉल ड्रॉ करनी है, जो भी बॉल ड्रॉ करनी है. राइट, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास हो जाएगी, यस, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे पिक करनी है. ओके, तो टोटल 8 हैं. तो पहले 8 फर्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे. 8 अपॉन टोटल आपके पास 15 है, तो 8/15 हो जाएगा. नेक्स्ट के लिए ऊपर भी एक ऑप्शन कम हो जाएगा और टोटल में भी एक कम हो जाएगा बिकॉज आपको गिवन है विदाउट रिप्लेसमेंट. सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 6/13. राइट, ठीक है, इसको वेरी सिंपली हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यस वी विल गेट वेरी सिंपल, यस 2 3 जा 2 7 जा एंड ये 5 जा पे जाएगा. ओके, एंड 7 से 7 कैंसल, सो इट विल बी 8/65. राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल. और हम इसको कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट जो फिर एक साथ उठा लेना, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि टोटल 8 में से आप 3 बॉल्स पिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डेट इज 8 में से आपने टोटल 3 ले ली और टोटल आपके पास 15 है. 15 में से आपने 3 पिक की. ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आपको मिलेगा. कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. ठीक है, 15 फैक्टोरियल आपके पास नीचे रहेगा और ऊपर आपके पास चला जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल. राइट, सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है. सॉल्व करने के बाद 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से 8 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 8 into 7 into 6. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी 15 into 14 into 13. ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आपके पास यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 8/65. राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल. आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Yes, a committee of 2 is selected from 2 men and 2 women. हमारे पास 2 men हैं and 2 women हैं and हमें जो select करना है वो 2 लोगों को select करना है. Now find the probability that जो first case हमारे पास यहाँ पर है कि हमें जो 2 लोग यहाँ पे select करने हैं उनमें से कोई भी men नहीं होना चाहिए. So first case is no man, and the second case is 1 man, right? And the third case is 2 men. Okay, so let's see कि क्वेश्चन कैसे होगा, तीनों केसेस को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए. सो फर्स्ट केस इज यस नो मैन. हमें 2 मैन और 2 वुमेन में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है एंड क्वेश्चन इज उनमें से कोई भी मैन नहीं होना चाहिए. तो ये ऑब्वियस है कि वो दोनों की दोनों वुमेन होनी चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इज एन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग 2 वुमेन, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर नो मैन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो दोनों 2 वुमेन ही होंगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, हम उसको ए इवेंट मान लेते हैं. 2 ही लोग हैं, 2 को ही सिलेक्ट करना है, 2C2 और टोटल 4 है, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है. सॉल्व कर लेते हैं. 2C2 1 आएगा, 4C2 4 फैक्टोरियल और ऊपर चला जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल. वेरी सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 4, दिस इज 24 एंड इट विल बी 1/6. वेरी सिंपल, 1/6 आपके पास आ जाएगा. सेकेंड केस 1 मैन. अब एक मैन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर एक मैन होगा तो दूसरी वुमेन होगी. तो उसके बाद एक मैन और एक वुमेन, तो इसको हम बी इवेंट मान लेते हैं. लेट बी इज एन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग 1 मैन एंड 1 वुमेन. ऑब्वियसली अगर 1 मैन होगा तो दूसरी वुमेन होगी, क्योंकि 2 लोगों को सेलेक्ट करना है हमें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगा यस. आउट ऑफ 2 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे. सिमिलरली आउट ऑफ 2 वुमेन में से एक सेलेक्ट कर लेंगे. टोटल 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, सेम 2C12 4, 4C2 दैट इज 4 फैक्टोरियल. ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल. ओके, दिस इज 24 एंड दिस इज 4 16 दैट इज 16/24. आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा. यस, 16/24. यस, दिस इज 2/3 राइट. ओके, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड केस में क्या है आपके पास? इट इज गिवन कि वो दोनों ही मैन होने चाहिए. ओके, सो वी विल अज्यूम लेट सी इज एन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग 2 मैन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कितने मैन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं. यस, तो टोटल मैन है हमारे पास 2 और हमें जो 2 लोग सेलेक्ट करने हैं वो दोनों मैन ही होने चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास यस 2C2 टोटल 4 में से आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं. 2C2 1 आएगा और अभी हमने सॉल्व किया था 4C2 को. यस, 4 फैक्टोरियल. ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल दैट इज 4/24 दैट इज 1/6 राइट. तो इट इज सो सिंपल. ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स. हमें 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं. ओके, एंड क्वेश्चन क्या है, वो हमें जो 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं उनको लेके हमें क्या कंडीशन गिवन है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर. लेकिन वो चारों के चारों जो कार्ड्स हैं उन पर सेम नंबर होना चाहिए. सेम नंबर मतलब सेम या तो वो चारों पर आपके पास जो नंबर है, अगर हम नंबर्स की बात करें, कैटेगरी की बात करें हमारे पास, तो टोटल 13 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं. देखिए कैसे, वो कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं. या तो उन चारों पर एस ए होगा. ओके, या फिर चारों पे 2 होगा, या फिर 3 और 4 और 5 और 6 7 8 9 10 जे हम यूज़ करते हैं 11 के लिए, जे क्यू और के. तो यू कैन सी देयर आर 13 कैटेगरीज. 13 आपके पास यहाँ पे हैं. मतलब या तो चारों पे ए या तो चारों एस के होंगे, या फिर चारों 2 नंबर के होंगे, या फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर चारों पर जे या फिर क्यू या फिर के. राइट. तो देयर आर 13 कैटेगरीज और आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी के 4 कार्ड्स ही होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात आ रही है कि जो आपको 52 कार्ड्स, आपको 52 में से जो आपको 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर. चारों पर सेम नंबर होना चाहिए. तो देयर आर 13 ऑप्शंस. ओके, वो सेम नंबर आपके पास वो चारों एस के भी हो सकते हैं, वो चारों 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 4 के भी, 5 के भी एंड सो ऑन. ओके, तो देयर आर 13 पॉसिबिलिटीज. तो स्टूडेंट्स अगर वो चारों एस के हैं, ओके,
तो एस के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, तो मान लेंगे लेट ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। तो अगर वो चारों हमने एस के ले लिए तो 4 में से हम 4 ले लेंगे और 52 में से 4 ले लेंगे, टोटल 52 से 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 के लेते हैं तब भी सेम यही प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। सभी 13 की 13 कैटेगरीज में प्रोबेबिलिटी सेम यही रहेगी, तो देयर आर 13 ऑप्शंस। तो इसी सेम प्रोबेबिलिटी को 13 टाइम्स लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 13, 4C4 1 आएगा, 52C4 को लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल, ऊपर चला जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लीजिए। 13 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, और नीचे आ जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, 48 से 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट, जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 1/20825, ठीक है। वेरी सिंपल, बस इसको हमने सॉल्व करना है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएंगी टर्म, जो बचेंगी। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 1/20825, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड है, अरेंजमेंट से रिलेटेड है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। यस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। आपके पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, तो आपने इस वर्ड के लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है, आप इनको ऐसे अरेंज करेंगे सो दैट कंसोनेंट्स अकर टुगेदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। ओके, तो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कुछ चीज़ें जब इकट्ठी आ जाती हैं तो उनको हम एज ए सेट एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंसोनेंट्स की बात हो रही है, तो उनको इकट्ठा कर लीजिए। MTH, MTCS, टोटल 7 कंसोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और वॉवल्स हैं आपके पास AAIE। इनको इकट्ठा रखना है, इसको एक सेट मान लेते हैं। टोटल 4, ये हो गए टोटल 5, ठीक है। ये 4 है, टोटल 5 हो गए। सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हमने एक ही लेकर चलना है, इसे हम एक ही लेकर चलेंगे जिसको हम इकट्ठा मानते हैं। इसमें रिपीटिशन देख लीजिए, A 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जिन्हें हमने इकट्ठा बिठाया है, जिन्हें हमने एक साथ लेकर चले हैं, उनकी भी आपस में अरेंजमेंट होगी, क्योंकि वो भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो 7 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से आप देख लीजिए M 2 टाइम्स, T 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये तो आपके पास आ गए फेवरेबल केसेस, दीज आर फेवरेबल केसेस। ओके, दैट इज 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट्स। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो दीज आर फेवरेबल केसेस, और आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट ई, हम वो इवेंट मान लेंगे। ओके, सो फाइनली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी। यस, लेट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रहेगी। इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, यस ये फेवरेबल हैं, और इनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से। टोटल हमारे पास क्या रहेंगे, टोटल में तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमें लिखना है। टोटल 11 है, 11 फैक्टोरियल, M 2 टाइम्स है, T 2 टाइम्स, बस डिवाइड कर देना है। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, कैंसिल। दिस इज 120, ठीक है। दिस इज, ये 12 पे जाएगा आपके पास। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारा आंसर है इट विल बी 1/66, 1/66, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आज हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।